Welcome to Artalab, a podcast dedicated to conversations on visual culture. On this episode, in the wake of India's 71st anniversary as a republic, we'll speak about the farmers' protests that have been raging across the country for more than 2 months now. At the time of this recording, on the 26th of January, India's Republic Day, police in the national capital of Delhi had cracked down on protesters as violence broke out in the Red Fort area, where the annual Republic Day parade was underway. Since then, police from Delhi and Uttar Pradesh have used force to evict protesters from and isolate the main sites of Singhu, Tikri and Ghazipur along the border that Delhi shares with Haryana and Uttar Pradesh respectively. For our listeners who may not know, the three Indian Agriculture Acts under criticism came into force in September 2020. I'm briefly going to list them, what they purport to do, and present the farmers' argument for why they are harmful pieces of legislation. Further information and readings are available in the image guide for this episode. The Farmers Produce, Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020 would ostensibly free farmers to sell their goods outside the APMC mandis, that is, Agricultural Produce Market Committee mandis, but in truth would lead to the suspension of a minimum support price and leave farmers at the mercy of private and corporate buyers. The Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Act 2020 would theoretically enable farmers to directly do business with agribusiness firms, wholesalers, retailers, and exporters, thus saving on marketing costs. But in reality, this would greatly reduce the bargaining power of farmers before corporations. The Essential Commodities Amendment Act 2020 would remove commodities like cereals, pulses, and onions from the list of essential commodities. While this may attract private and foreign investment and thus make sense for business owners and corporations, farmers will have no say in the sales of their produce since these big companies can decide whether and on what terms to stock it. Many artists have lent their voice and vision to the language of the farmers' protests. For example, the photographer and filmmaker Randeep Madok has been mentoring young artist volunteers at the border, and the protest's official newspaper, Trolley Times, has on board the artists Thukral and Tagra, as well as Gurdeep Dhaliwal, filmmaker and founder of the Instagram page Keert Stories, documenting Punjabi artists and craftspeople. Today, we have with us another such artist who is deeply involved, materially, creatively, and politically with the movement. Shweta Bhattar is a farmer and visual artist, performer, and sculptor. She studied sculpture in Nagpur and at MSU Baroda and is a founder member of the Gram Art Project Collective, which is a group of farmers, artists, and other members of the community based in her village of Paratsinga in Madhya Pradesh. With a focus on issues of women's safety, education, and the female body, she works with agricultural materials and roots her artistic practice, no pun intended, in the context of rural cultivation as a political, social, and economic mode of life. She has exhibited widely, including at the Vancouver Biennale in 2014 and at Khoj, New Delhi in 2017 as part of Evidence Room, a retrospective of a 5-year public art initiative called Negotiating Roots, Ecologies of the Byways. Along with her co-founders of the Gram Art Project, Shweta won the FICA Public Art Grant in 2015 to organize India's first land art festival, Gram Dhara Chitra Utsav. On today's episode, we discuss her artistry and farming work against the backdrop of the farmers' protests. Shweta is joining us from her village, Paratsinga in Madhya Pradesh. The internet connection and phone signal in Paratsinga were a bit irregular as we recorded, and while we've tried our best to achieve the most optimum sound quality, we would be grateful for your patience with the audio. Welcome to the show, Shweta. It's great to have you with us. Hi Kamini, thank you. The following interview has been conducted in Hindi. Listeners can access a complete, time-stamped English language transcript by clicking on the link in the episode show notes. Before we continue, I'd like to let our listeners know how to access the visual material accompanying our conversation. To view the images being discussed in the episode, click on the link in the show notes to download the guide. You can also download the image guide for each episode from our Twitter and Instagram pages. मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए, आपने हमें अपना समय दिया. मैं समझती हूँ कि इस वक्त जाड़ों का हार्वेस्ट चल रहा है जहाँ आपके गांव में. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ आप आए हम बात करने के लिए. आपको पता है, आप और मैं पहले मिले हैं. आपको याद बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हम मिले हैं. हाँ, नहीं कामयाबी में तो नहीं ध्यान है.
वेल एक्चुअली हम शायद ये कहना ठीक नहीं है हम मिले हैं, क्योंकि उस वक़्त आप लेटी हुई थी, एक स्क्रीन आपकी कमर पे था और आप मेरे कैंपस पर थी। ये जो आपने स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में एक परफॉर्मेंस की थी जेएनयू में, आपको याद होगा, 2016 में, हाँ, हाँ। डू याद है, दीज़ याद ग्लोरिफाइड सीन्स इन द मूवीज़ इंस्पायर यू टू रेप? है। हाँ, हाँ। मुझे लगा मैं आपको बताऊँ कि ऐसी हमारी एक अजीब मुलाकात हुई है। अरे वाह! अच्छा लगा सुनकर। अम, श्वेता, मैं शुरू करना चाहूँगी आपके थोड़ी-सी जीवनी के बारे में हम डिस्कशन करें अगर, कि आप एक किसान परिवार से हैं, और आप एक ऐसे इलाके से हैं जहाँ किसानों का उत्पीड़न और शोषण बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर समस्या है। अपने बचपन के जो आपके अनुभव हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइए, और इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप अपने किसान होने, नागरिक होने और आर्टिस्ट होने की एक जागरूकता या अवेयरनेस जो होती है, वो कैसे उत्पन्न हुई आपके लिए? मेरे पापा जो है वो मैंने बचपन से ही उनको खेती करते हुए देखा है और गाँव में जो भारत सिंघा गाँव है जहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं वहाँ हमारी खेती है, घर है और मतलब मेरे दादाजी या पहले भी जो सारे घर के लोग थे वो सब खेती में ही ज़्यादातर उनका पूरा जीवन उसी में गया है। और हमारे पढ़ाई के लिए मेरे पेरेंट्स हमको लेकर नागपुर आ गए थे जो पारड़-सिंगा गाँव से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। पर ज़्यादातर छुट्टियों के दिन, त्योहार, संडे हम लोगों के पूरे गाँव में ही बीता करते थे। और उसमें खेती बहुत ही इम्पोर्टेंट थी क्योंकि पापा आते थे और फिर हम लोग उनके साथ खेत जाते थे। खेत में कोई ना कोई चीज़ चालू होती थी, कभी बुआई शुरू होती थी, कभी कुछ हार्वेस्ट शुरू होता था, कभी जानवरों के साथ कुछ इंटरैक्शन तो ऐसे सारी चीज़ें और गाँव में जो ज़्यादातर दोस्त थे वो भी सारे किसान ही थे मतलब किसान या तो किसान थे या तो फार्म लेबर्स थे। उनके माता-पिता तो ऐसे सारे हम लोग सारे दोस्त थे और एक साथ हमारा बहुत सारा समय बीतता था जो कि ज़्यादातर खेल भी ऐसे होते थे जो पेड़ों से, खेती से, मिट्टी से ऐसे ही रिलेटेड पत्थर से ऐसे ही रिलेटेड सारी होती थी। तो बेसिकली बचपन ऐसा ही गया है पूरा और बहुत सारी बचपन से कुछ-कुछ सवाल जो मन में आते थे वो यही कि अगर खेती है खुद के पास और सारी चीज़ें खेती में उगती है, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर किराना से क्यों लानी पड़ती है? और जब और बहुत सारे किसान दोस्त ऐसे भी थे, जिनके यहाँ पे खाने के लिए बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती थी। तो ये भी लगता था कि अरे! किसान हैं, लेकिन फिर भी खाने की कमी कैसे हो सकती है? ये तो सब कुछ खुद के लिए उगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते थे मन में, ऐसा लगता था कि शायद ठीक से प्लान नहीं करते होंगे या ऐसे तो ऐसे कुछ-कुछ मन में चीज़ें जो है वो रह गई है ऐसा मुझे मेमोरीज़ में है। और बड़े होते-होते भी बहुत सारी चीज़ें दिखती रहती थी आस-पास किसानों के बारे में, फिर आंदोलनों के बारे में। तो क्योंकि वो बचपन से देखा हुआ है, कनेक्टेड है, तो वो चीज़ें बार-बार दिमाग में इम्प्रिंट होते जाती मतलब दिमाग में वो घर करते जाती थी। और बचपन में देखिए और वही कहीं तो भी फिर पूरे कामों में आने लगा धीरे-धीरे। जो हम लोग यहाँ पे कलेक्टिवली ग्रामर साथ में कुछ आर्टिस्ट है, कुछ किसान है, गाँव की औरत है, फार्म लेबर्स है, कुछ और भी अलग-अलग फील्ड से स्टूडेंट्स हैं, तो हम सब जो मिलके काम करते हैं उसमें ये सारे जो कंसर्न्स है, जो हम लोगों ने सबने ही कलेक्टिवली मिलकर देखे हैं, भी लगते हैं वो फिर धीरे-धीरे हमारे खेतों में, हमारे काम करने के तरीकों में और मटीरियल में और जो एक्सप्रेस करना है, जो बोलना है उसमें वो आने लगे कलेक्टिवली, ठीक है? और बस यही इसी हुँ। तरीके से
जो ये आप ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। मुझे याद है जब आपकी और मेरी बात हो रही थी, आपने कहा था कि रेज़िडेंसी मॉडल जो है एक किस्म का, वो काफ़ी अहम रहा है आपके प्रैक्टिस में। आपने मुझे ये बताया था आपकी जो क करियर में इसकी अहमियत रही है रेज़िडेंसी की। आपकी जो ये एक सामूहिक यानी कलेक्टिव प्रैक्टिस है जो ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट की और ज उसको क्या वो रेज़िडेंसी एक्सपीरियंस की वजह से भी है? और क्या चुनौतियाँ या रिवॉर्ड्स होते हैं कम्युनिटी रूटेड प्रैक्टिसेज़ में? ज़रा हमें बताइए। जी। जिस जगह से मैं आती हूँ यहाँ पे कितने ऑप्शंस होते हैं। तो आर्ट ये कोई सब्जेक्ट होता भी है? क्या इसमें कहीं को भी पढ़ाई कर सकते हैं? फाइन आर्ट ऐसे कुछ होता है? जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता है, मुझे तब पहले बिल्कुल भी नहीं पता था इन सारे ऑप्शंस के बारे में। मतलब मैं जब अपना बैचलर्स भी कर रही थी, तभी भी मुझे बहुत सारे सवाल आते थे आस-पास की चीज़ों के बारे में, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी मैं समझ रही थी उस वक़्त पॉलिटिकली आस-पास चल रहा था या सोशली या पर्सनल लाइफ में भी। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने कामों के थ्रू कोशिश करती थी कि मैं उसे किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊँ और बहुत ही ऐसे कन्वेंशनल मटेरियल्स के साथ नहीं रहकर क्योंकि वहाँ कहीं तो भी मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच रहता है ये आर्ट की तरफ और बड़ौदा जाने का मौका मिला तब इसके बहुत सारे कंसेप्चुअल पहलू पर भी बात करने का मौका मिला। जो गाइड थे वहाँ पे या जो लोग थे, आर्टिस्ट थे, वो सारे या ये इन डिस्कशंस को बहुत फ्यूअल मिला वहाँ पर एकदम ऐसे अच्छे से। जब बड़ौदा से पढ़ाई पूरी हुई और अलग-अलग ऑप्शंस थे कि तुम्हें मुंबई में जाना है, बैंगलोर जाना है या दिल्ली जाना है या कहीं और जाना है। तो मुझे कहीं तो भी डिस्प्ले, गैलरी ये सारे चीज़ों में बहुत सारे सवाल थे मतलब आँखों के सामने तो यही रहता था ना कि हाँ, ये कुछ ऑप्शंस थे पास आउट होने के बाद। पर कहीं तो भी मुझे ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड स्पेसेस लगती थी। ये चार दीवारें मुझे बहुत ही खटकती थी और कहीं तो भी ऐसा लगता था कि नहीं, अगर मुझे गाँव में जाकर ये बात बोलनी है, तो मेरा स्पेस क्या होगा? ये बात कौन सुनेगा और ये क्यों बोलना है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आने लगे मन में। तो उस वक़्त फिर कहीं तो भी मटीरियल, स्पेस, ऑडियंस ये सारी चीज़ें बदलती गई धीरे-धीरे। कहीं और हर बात बोलने के लिए जो भी लगता था उसके ऊपर अगर एक्सप्रेस करना है तो उसमें हर बार अलग मटीरियल, अलग वेज़ ये सारे आते गए और वही वक़्त था ऐसा जब खोज के साथ कनेक्ट हुई वहाँ एक रेसिडेंसी में रहने का मौका मिला अलग-अलग आर्टिस्ट के साथ, फूड रेसिडेंसी थी और उसके बाद फिर बहुत सारी अलग-अलग रेसिडेंसीज़ में भी जैसे सोइंग सीड रेसिडेंसी उस वक़्त थी राजस्थान में और वो भी एक जेतपुर नाम के छोटे गाँव में थी। उसके बाद कोटा में एक रेसिडेंसी में जाने के लिए मिला, फिर ओडिशा में एक रेसिडेंसी में थी पारबिल। तो ऐसे अलग-अलग जगह और ये सारे गाँव में ही थी। गाँव में या आदिवासी इलाकों में। तो उसमें जो कुछ भी कम्युनिटी के साथ रहकर काम करने का मौका मिला और बाकी के जो भी को-आर्टिस्ट थे रेसिडेंसीज़ में, वो भी उसी कम्युनिटी के अलग-अलग पहलुओं को लेकर लोगों के साथ इंटरैक्शंस कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो कहीं से मुझे लगा कि नहीं ये स्पेस है। मतलब दिस इज़ द स्पेस जहाँ पे बहुत ही मीनिंगफुल इंटरैक्शन होकर कुछ मीनिंगफुल रिश्ते रिश्ते बनते हैं और फिर रिश्ते जब बनते हैं तो उस काम जो उसके साथ होता है, वो क्या उसे सिर्फ़ आर्ट नहीं बोल सकते। तो कहीं तो और सिर्फ़ एक आर्टिस्ट का काम नहीं होता वो कहीं तो बहुत सारे हम कुछ चीज़ें फ़ील किए होते हैं कभी तो और आज जो हम फ़ील कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ़ एक हमारा ही रोल नहीं होता, उसमें पूरे-पूरे कम्युनिटी का रोल रहता है। और कहीं तो भी मैं अपने गाँव से इन सारी चीज़ों को जोड़ पा रही थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन थी और ये तो तय था कि किसी मेट्रो सिटी में जाके नहीं रहना है, क्योंकि वो अपनी जगह नहीं लग रही। तो कहीं तो ऐसा लग रहा था कि नहीं नागपुर वापस आना है और नागपुर में भी बहुत सारे दोस्त थे जो इसी तरीके से चीज़ें सोच रहे थे, कि कहीं तो उनको अधूरापन लग रहा था खुद के प्रैक्टिस में
और कहीं तो और भी चीज़ें मीनिंगफुल हो सकती है, लाइफ मीनिंगफुल हो सकती है। ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस हम लोगों के चल रहे थे। उसी में एक परफॉर्मेंस सीरीज़ करी फेथ नाम से, जिसमें अलग-अलग परफॉर्मेंसेस किए सड़क पर, कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर जाकर। और उसी तरीके से फिर लोग जुड़ते गए, ग्रुप्स बनते गए, दाय मतलब कम्युनिटी बढ़ती गई। मतलब अगर किसी एक चीज़ के बारे में बात करनी है जो कि पूरे कम्युनिटी के साथ जाके करनी है, तो वो तुम अकेले नहीं कर सकते हो। उसके लिए सिमिलर कंसर्न्स वाले लोग चाहिए जो अलग-अलग रोल प्ले करते हैं उस चीज़ को होने, उस कम्युनिकेशन को होने में। तो बेसिकली ये सब चलता रहा और साथ में गाँव का जो प्रोसेस था वो तो चल ही रहा था। और वो जो रेसिडेंसीज़ के एक्सपीरियंसेस थे, और कहीं तो मैं कुछ ढूँढ रही थी कि मतलब अगर ये चीज़ बोलना है तो किस तरीके से बोलूँ, तो कहीं तो भी एक रास्ता क्लियर होते गया मेरा भी और हम सबका भी, जो हम सब साथ में उस वक़्त काम कर रहे थे। और मतलब खोज जैसी जो स्पेसेस है, या जो ऐसे कम्युनिटी में रेसिडेंसीज़ होती है, ये स्पेसेस है, ये इनका महत्व भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। फिर वैंकूवर बिनाले से इनवाइट आया कोच के थ्रू, और वहाँ पे भी 2 ऑप्शंस थे कि या तो तुम्हें वैंकूवर में रहना है जो कि सिटी है, या तो स्क्वैमिश में रहना है जो कि गाँव है। तो मैंने स्क्वैमिश ये जगह चुनी क्योंकि गाँव ही था, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे भी किसान मिलेंगे। तो ज़्यादातर पंजाबी किसान मिले कनाडा में। इंटरैक्शन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ उन लोगों के साथ, और कोलैबोरेशन भी। लेकिन यहीं से हाइब्रिड प्रोजेक्ट किया था हम लोगों ने। फिर यहाँ पे तो नहीं आ पाए, लेकिन किस तरीके से इंटरैक्शन हो सकते हैं, तो खुद के कंट्रीज़ में रह के हो सकते हैं क्या? फिर हम लैंड आर्ट कर सकते हैं क्या? फिर लैंड आर्ट के थ्रू नॉर्मल खेती नहीं है जो रोज़ में है, पर कोई इमेज है। आजू-बाजू के लोगों को हम जमा कर सकते हैं क्या? उसके साथ बात कर सकते हैं क्या? और खेती से रिलेटेड एक-दूसरे से जो हम लोग समझ रहे हैं, वो स्टोरीज़ हम लोग शेयर कर सकते हैं क्या? तो ये सारे इंटरैक्शन शुरू हुए। तो पहले तो पहचान के कुछ-कुछ दोस्तों से हुए, जो भारत में भी थे, बाहर भी थे। और फिर धीरे-धीरे मैंने सर्च करना शुरू किया कि कहाँ पे किस तरीके का काम हो रहा है, और भी किन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, और उसी तरीके से फिर आई हैव अ ड्रीम हुआ। और फिर ये समझ में आया कि कहीं तो भी लैंड आर्ट की ताकत है कुछ, क्योंकि खाली हुँ, हुँ। मैं वही पूछने वाली थी आपको। ये जो लैंड आर्ट की बात आप कर रही थी, मैं इसी सिलसिले में थोड़ा पूछना चाहूँगी परफॉर्मेंस आर्ट की बात। अब आपके जो मतलब आपने अभी बात की अपनी फेथ सीरीज़ के बारे में, और ये जो कम्युनिटी वाली आर्ट जो हमने अभी ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात की, तो मैं जानना चाह रही थी कि आपकी प्रेरणा कौन से आर्टिस्ट, मूवमेंट्स या फिलॉसफीज़ रही हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ौदा में मुझे जब बहुत सारा समय मिला, तो मुझे अमृता प्रीतम पढ़ने का मौका मिला, और मैं उनको बहुत पढ़ा है। मुझे उनकी भाषा, इमोशंस, ये सारी चीज़ें बहुत ही एकदम ऐसे पास के लगते हैं बहुत ज़्यादा। साथ में बड़ौदा में जब मैं थी, तो 3 लोगों को मैं मेंशन करना चाहूँगी। दीपक जो आर्ट हिस्ट्री पढ़ाते थे उस वक़्त, उनके साथ बहुत काम को लेकर चर्चाएँ करने के लिए मिली। सोमन, केपी सोमन सर थे उस वक़्त, और तुषार जोग थे, और इवन यहाँ पे नागपुर में एक आर्टिस्ट थे ललित तिकमशी। तो ऐसे ये कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सवालों के एंटरटेन किया, मतलब उन्होंने समय दिया खुद का। और बेसिकली उस वक़्त तुषार जोग के मैंने कुछ परफॉर्मेंसेस देखे थे मुंबई में। तो बेसिकली ये कुछ लोग थे, और अभी योगेंद्र यादव को मैं सुनती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो। बहुत सारे ऐसे कुछ-कुछ मोमेंट्स हैं, जैसे कि नागपुर बीज उत्सव है, जिससे जुड़ने का मौका मिला। वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, कुछ-कुछ लोग हैं जो जिन्होंने किसानी चुनी है, और कुछ-कुछ ऐसे हैं जो जिन्हें किसानी मिली है, और उन्होंने उसे संजो के रखा है। मतलब पहले से उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ, उनका ज़िंदगी ये। तो बेसिकली और कुछ-कुछ सीड सेवर्स मिले। तो इस तरीके के कुछ-कुछ किस्से होते हैं रियल लाइफ में, जिसमें सब
कम्युनिटी से, लोगों से, इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा मुझे लगता है जी, कि जी। इंस्पिरेशन मिलता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी इंटरेस्टिंग है ना कि जिस तरीके से मतलब हम हमेशा आर्ट को जब हम कोई चीज़ बनाते हैं हम इन प्रेरणा एक ऐसी लिनियर चीज़ नहीं होती है ना। वो हमारे ज़हन में कोई चीज़ रह जाती है ना और फिर हम उसको टटोलते हैं और वो कोई रूप लेती है, हमारी अपनी एक ओरिजिनल जो प्रक्रिया होती है, उसके ज़रिए। तो ये तो ये और मेरे पहले सवाल को थोड़ा-सा मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। मैंने कुछ साल पहले आपकी प्रैक्टिस पे एक निबंध लिखा था जिसमें मैंने आपको कुछ 60s और 70s के अमेरिकन लैंड आर्टिस्ट से आपके काम को मिलाया है। अ, बॉनी ओरा शार्क हैं, मेल चिन हैं, एग्नीज़ डेनिस हैं, ये कुछ चंद नाम हैं। ख़ासकर कि बॉनी ओरा शार्क के काम को मुझे लगता है मुझे मतलब मुझे लगा कि बहुत सिमिलैरिटीज़ भी हैं कहीं न कहीं आपकी और उनकी प्रैक्टिस में। उन्होंने 70s में काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग काम भी किया। उनके 2 सीरीज़ हैं, एक तो सिटिंग स्टिल जिस 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 परफ़ॉर्मेंस पीस में वो अलग-अलग जगहों पे जाके वहाँ बस बैठ जाती थी। पब्लिक प्लेसेस में, जहाँ बैठने का कोई तुक नहीं है। जैसे कचरे का एक मतलब वेस्ट का एक पूरा एरिया है, वहाँ जाके बैठ जाना। उनका एक बहुत मशहूर परफ़ॉर्मेंस था जहाँ वो ज़ू में जाके बैठी थी। और वहाँ पे जानवरों के साथ उन्होंने खाना खाया। वो पूरा परफ़ॉर्मेंस पीस था। उनको ज़ू कीपर ने जैसे ह्यूमन्स का खाना दिया। जैसे कि शेर को शेर का खाना मिलता है या हाथी को हाथी का खाना मिलता है। तो वो उनका मतलब उन्होंने इस तरीके से एक परफ़ॉर्मेंस पीसेस किए और उन्होंने पोर्टेबल पार्क्स करके एक सीरीज़ किया। जहाँ वो अलग-अलग शहरी जगहों पे अर्बन एरियाज़ में जाके उन्होंने उसको उसको एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया, मिनिएचर पार्क में। वहाँ चीज़ें उगा के, वहाँ पे हरियाली लाके। ये जो हम अभी सब बातें कर रहे थे एक ज़ अपने ज़मीन ए या एक तो ज़मीन और अपने शरीर का उपयोग करके जो काम बनाते हैं ये सब लोग। अ, प पे पेट्रियार्की और कैपिटलिज़्म यानी कि पितृसत्ता और पूंजीवाद की निंदा करता है और वही आपके काम में भी दिखता है। इन सब की प्रैक्टिस को एक किस्म के इको फेमिनिस्ट नज़रिए से समझा जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्यावरण और स्त्री के जो ऐतिहासिक शोषण की आलोचना करती धारणा है, ये इनके काम में खोजी जा सकती है और जैसे आपके काम में भी मुझे एक वो इको फेमिनिज़्म का स्ट्रेन दिखता है। इस बैकड्रॉप में मद्देनज़र रखते हुए आपके काम के बारे में थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। एक तो आपने सीरीज़ फेथ के बारे में बताया। आप थोड़ा हमें बताएँ कि वो एग्ज़ैक्टली परफ़ॉर्मेंस क्या थी? और 3 कोर्स मील्स एंड अ डेज़र्ट ऑफ वॉमिट भी आपका एक काम है, जो हम इन दोनों को हम एक तरीके से एक इको फेमिनिस्ट परफॉर्मेंस आर्ट के सिलसिले में समझ सकते हैं। तो इसके बारे में हमें इन दोनों पीसेस के बारे में हमें थोड़ा बताएँ, आपने कैसे सोचा, कैसे माउंट किया? बेसिकली 3 कोर्स मील एंड डेज़र्ट ऑफ वुमन ये परफ़ॉर्मेंस मैंने खोज में किया था, फूड रेसिडेंसी के वक़्त। उस वक़्त मैं भूख क्या है, ये समझने की कोशिश करना चाहती थी कि मतलब भूख क्या होती है? और अगर इंसान भूखा हो, तो वो चीज़ों को कैसे देखता है? या उसमें सोचने और समझने की क्षमता रह जाती है क्या कि जब वो भूखा है? या कुछ काम करने की? और उसी जगह पे कहीं पे बहुत एक्सेस फूड होता है। मैंने डिसाइड किया था कि 3 दिन मैं कुछ नहीं खाऊँगी, कुछ नहीं पीऊँगी और ये समझूँगी कि भूख सच में क्या होती है। तो बेसिकली जब 3 दिन नहीं कुछ खाया और जबकि वो कोई उपास नहीं था या कुछ नहीं था, बस ये समझने के लिए। तो उस वक़्त और फूड रेसिडेंसी थी, बहुत सारी अलग-अलग जगह से खुशबू आ रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ पकता ही रहता था। तो कहीं तो आखिरी दिन इतना इम्पेशेंट हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वो जो खुशबू आ रही है, वही मैं खा लूँ। तो हाँ, कहीं मैं खा लूँ और कहीं तो वो जो फूड वेस्टेज था या वो कहीं पे स्कार्सिटी थी, तो ये सारी चीज़ों को जो वेस्टेज था उसको मैं वॉमिट के साथ रिलेट कर रही थी। और फिर मैंने वो 3 दिन में मैंने बहुत सारे अपने हाथ के मोल्ड निकाले थे, जो कि भूखे हाथों के मोल्ड्स हैं। और साथ में उस वक़्त ऐसा लगता था कि दाँतों को कुछ काम चाहिए उस 3 दिन में। ऐसा लगता था कि बल का दाना ही खा लूँ क्या? ऐसे भी लगता था। तो सारे एलिमेंट्स जो थे 3 दिन के, वो कहीं तो भी एक-एक करके उस परफ़ॉर्मेंस में आते गए। जैसे कि वो जो हाथ थे, वो कहीं तो इंस्टॉलेशन का हिस्सा था, जिसके अंदर वो छोटा-छोटा चावल का दाना या दाल का दाना था। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था।
तो जैसे ही लोग अंदर एंटर करेंगे तो वो वहाँ पे छोटे ऐसे मैग्नीफाइंग लेंस लगे हुए थे कि वो देखेंगे उस चीज़ को, कि तो वहाँ पे एक-एक मतलब वो जो एक-एक चीज़ मुझे बहुत बड़ी लग रही थी उस वक़्त, उस चीज़ ने उसी तरीके से रखने की कोशिश करी। वहीं पे बहुत सारा बैग का फूड रखा हुआ था, जो कि दिखता असली था, जो मैंने बनाया था, और वो लेकिन वो तुम मतलब भूख लगी है, और हर एक आर्टिस्ट जो भी वहाँ पे था, उसने जो कुछ भी डिस्प्ले किया था, उसमें लोग एक्चुअली जाके खा सकते थे, पी सकते थे। लेकिन यहाँ पे पूरा खाना है, सब कुछ है, तुम अंदर आ रहे हो तो तुम्हारे हाथ में एक खुशबू भी लगी है, जो कि पके हुए चावल की खुशबू है, जो भूख और एनहांस करती है। ये प्लेट भी दी जा रही है, पर जब तुम अंदर आते हो तो तुम्हें भूखे हाथ दिखते हैं, जिसके अंदर एक-एक दाना है, वो भी समझना है, तो उसे भी तुम्हें मैग्नीफाइंग लेंस से देख के समझना है। फिर वहाँ पे बहुत सारा रखा हुआ है, पर इट्स बैड, यू कैन स्मेल इट बट यू कांट ईट इट। तो तुम्हारी प्लेट के शो में खाली ही घूम रही है, और साथ में एक कॉफ़िन था जिसमें वॉमिट भरी थी, और वहाँ पे मैं लेटी हुई थी, और वॉमिट जैसे दिखने वाला फ्लूइड था, और वॉमिट की आवाज़ थी, और धीरे-धीरे वो पूरा कॉफ़िन भर रहा था जब तक कि मेरा लेना बंद ना हो जाए। तो ऐसा वो पूरा ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस बनाया था, और उसे उसी तरीके से बयान करूँ। हाँ, हुँ। और उसे उसी तरीके से डिज़ाइन किया था कि 3 दिन जो मुझे फ़ील था, और ओवरऑल जो मेमोरीज़ मैंने रिकलेक्ट करी थी उस वक़्त, हुँ। तो वो मैं कैसे दे पाऊँ। और प्रोजेक्ट फेथ ये सीरीज़ ऑफ परफ़ॉर्मेंस है जो अलग-अलग जगहों पे पब्लिक स्पेसेस पे मैंने किए। जैतपुर में जो मैंने कहा, जैतपुर के 40 सपने, तो उसमें भी मैंने अपने पूरे शरीर पे फेथ, विश्वास ये लिखा। मैंने फ़ोटोज़ देखी थी उस परफ़ॉर्मेंस की, तो मुझे काफ़ी मतलब रोमांचक भी लगा। आप एक ट्रैक्टर के ऊपर बैठी थी एक में शायद, और लिखे जा रही थी विश्वास, और आपने एक सफ़ेद रंग का जैसे यूनिटार्ड किस्म का पहना हुआ था सारी परफ़ॉर्मेंसेज़ में, है ना? तो ये जो आइकॉनोग्राफ़ी है वो कैसे आपके दिमाग में आई? और ख़ासकर कि अब जब ट्रैक्टर इतना महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है किसान आंदोलन के लिए। बेसिकली मुझे ये लगता था कि ये जो कुछ भी बातें करने जा रही हूँ, ये मेरे अकेले की बात नहीं, मतलब ये तो बहुत सारे लोगों को बोलना है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कई सालों से इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ़ मैं अकेली नहीं हूँ, तो कहीं तो भी मुझे मतलब मैंने जब फेथ परफ़ॉर्मेंस की शुरुआत करी थी, तो मुझे ये लगता था कि कोई एक जन आ रहा है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो पता नहीं है कौन है, लेकिन वो कुछ बोल के जा रहा है, तो कहीं तो भी वो आइडेंटिटी उस बात से बड़ी ना हो, कहीं तो वो छुपा रहे कि कौन है। बस ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। हाँ, हाँ, लेकिन जब मतलब उस वो सफ़ेद बालों का और बेसिकली वो पूरे अटायर का वही एक कारण था शुरुआत में। पर फिर बाद में वो जब तक कि लगा कि नहीं ऐसे करना है, तो तब जब तक कि मैं उस अटायर में कंफर्टेबल थी, तब तक के वो अटायर था। फिर वो भी बदल ओवर द टाइम। पर वही था कि हर परफ़ॉर्मेंस को लेकर जो किया था उस जगह पे, जैसे आपने ट्रैक्टर वाली बात बोली, वो जेसीबी था। वो परफ़ॉर्मेंस किया था कोटा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक साइट था, जो जहाँ पे नया कोचिंग इंस्टीट्यूट बन रहा था, और वो जो परफ़ॉर्मेंस किया था वो वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि बहुत ही कंसर्न थे इंक्रीज़िंग सुसाइड जो बच्चों में हो रहा था। कोटा में तो अपने को पता है कि क्या रहता है। जो लोग नहीं जानते हैं, कोटा में इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स को क्लियर करवाने की कोचिंग की इंडस्ट्री सी खड़ी हो गई है। वहाँ जो बच्चे टीनेजर्स पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग स्कूल में दाखिल होने की जो हमारे देश में दीवानगी है, उसके प्रेशर की वजह से एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ डेवलप कर लेते हैं। हर साल बहुत दुखद बात है, बहुत से स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। पत्रकार स्निग्धा पूनम ने इसके बारे में विस्तृत रिपोर्टिंग की है। जी श्वेता, आप आगे बोलिए। तो बेसिकली उस चीज़ में उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे उन बच्चों तक पहुँचा जाए, क्योंकि कहीं तो भी हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसे एक कमाई का साधन बना लिया था कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में ही कुछ साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉय कर दिए। लेकिन एक डॉक्टर्स का ग्रुप था जो कि चाहता था कि वो फ्री में इन लोगों का वो कंसर्न था बेसिकली कि वो इनको फ्री काउंसलिंग दे पाए, पर किस तरीके से कनेक्ट हो पाए वो कहीं तो भी छूट रहा था। तो बस वो एक इमेज बनाया था, एक कनेक्टिंग वो किया
कि जहाँ पे बच्चे भी रुके, वो भी रुके और कहीं तो इंटरैक्शंस हो और बातचीत हो। आपने विश्वास शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? ऐसा होता है ना कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये है जो कि लगता है कि ये सही होना चाहिए, ये ऐसी नहीं होना चाहिए, ये कुछ और होना चाहिए। तो कहीं तो भी एक विश्वास रहता है मन में, कहीं तो होता है कि हाँ, तो आप सकारात्मक हैं, आशाजनक हैं आप कि कुछ होगा। कुछ होगा। हाँ, हाँ। तो ओवरऑल अच्छा। यानी ये सकारात्मकता आपके थोड़े कुछ और कामों में भी शायद झलकती है वो इसी इससे मैं बात करना चाहूँगी। ये आई हैव अ ड्रीम के बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे जो कि वैंकूवर बिएनाले का 2014 में थीम था और आपके काम का भी शायद नाम यही है। तो ये जो शीर्षक है, ये जैसे आपने बताया डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मशहूर शब्दों को दृष्टांत देता है, साइट करता है। उन्होंने 1963 में वॉशिंगटन में अमेरिकन सिविल राइट्स संघर्ष के दौरान एक बहुत ही प्रतीकात्मक भाषण दिया था, ये उसका हिस्सा है। डॉक्टर किंग की जो विचारधारा थी, जो कि सरल भाषा में कहें तो भेदभाव के खिलाफ या रेशियल, सामाजिक और आर्थिक न्याय के समर्थन में है। आपके काम से ये किस तरह ताल्लुक रखती हैं, शायद सही सवाल नहीं होगा, ताल्लुक रखती हैं ये तो प्रत्यक्ष है। लेकिन उनकी सोच से क्या प्रेरणा मिली आपको जो हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश, विदर्भ इलाके के किसानों और खेत मज़दूरों के मुद्दों से संबंधित आपकी प्रैक्टिस को आपने एक अमेरिकन मास लीडर से जोड़ा? आई हैव अ ड्रीम का कोई भी लैंड आर्ट गाँव में नहीं हम लोगों ने किया कि जिस रेसिडेंसी में आर्टिस्ट और किसानों को बुलाया था और कहीं तो किसानों की सपोर्ट मिल पाए। तो फिर ये चीज़ को समझना मेरे लिए और ओवरऑल हमारे पूरे ग्रुप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि क्यों ऐसा हुआ है। तो बेसिकली यही थॉट प्रोसेस था जब आई हैव अ ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, मतलब वैंकूवर का थीम भी था वो और कहीं मार्टिन लूथर का स्पीच सुना, समझा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि मतलब कैसा है कि संघर्ष के टॉपिक्स अलग-अलग हो लेकिन फिर भी फ़ील जो रहता है, जो इमोशंस रहते हैं वो कहीं तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो सपने जो है वो कहीं तो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, होप्स बहुत सिमिलर होते हैं। मतलब वो तो होप ही होता है ना, वो तो ड्रीम ही होता है ना, ड्रीम तो ड्रीम होता है। तो उसको से वो नहीं कर सकते, वो कैटेगराइज़ नहीं कर सकते बेसिकली। तभी ये लगा कि ये बहुत अच्छा मौका भी है कि ज़्यादातर लोगों से जुड़ सकती हूँ और वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे तो एक काम शुरू ही था। अलग-अलग रेसिडेंसीज़ में जहाँ तक आज तक गई थी, वहाँ पे भी सिमिलर कंसर्न के लोग या बातों के लोग अपने आप एक साथ आते आते हैं, वैसा वो सूट ही बनते जाता है, माहौल ही बनते जाता है। तो ऐसे अलग कुछ आर्टिस्ट थे जो ऑलरेडी किसानों के साथ काम कर रहे थे और पता था। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा हो सकता है क्योंकि कोई यहाँ नहीं आ सकता, मतलब अगर नहीं आ लेकिन अपने जगह पे रह के तो काम हो ही सकते हैं। और जब मैंने ये चीज़ें शेयर करना शुरू करी दोस्तों के साथ, तो उन्हें इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ, हम ऐसा कुछ ग्रो कर सकते हैं। कुछ इसके अराउंड कुछ और अलग-अलग गैदरिंग्स हो सकती है छोटी-छोटी और ऐसे हुआ हर जगह। मतलब मुझे याद है कि एक इटालियन दोस्त जो मेरी थी, जो मुझे स्वयं सीड रेसिडेंसी के वक़्त ही मिली थी। उसने मुझसे कुछ कहा था कि हाँ, ऐसे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे किसानों के साथ मिलके, हमारा एक स्पेस है। कि उसके दोस्त का एक फार्म है जहाँ पे उसके कैटल्स है, उसके रैबिट फार्म है, डक फार्म है। ऐसा उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्म था और उसके खुद के अपने स्ट्रगल्स थे कि आस-पास बहुत ज़्यादा मार्बल माइनिंग की वज़ह से क्या-क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। फिर उन्होंने उनके कैटल्स को उनको कैसे जंगल में छोड़ना पड़ा और जब आई हैव अ ड्रीम उन्होंने वहाँ पे किया, तो और भी उनके साथ लोग जुड़े। मैंने उनके भाषा में वहाँ पे इटालियन भाषा में आई हैव अ ड्रीम लिखा था। और फिर कुछ उसके दोस्त आए जो कि ड्रोन लेकर आए, तो ऐसे कम्युनिटी उनकी बढ़ती गई क्योंकि आसमान से फ़ोटो खींचना है क्योंकि ज़मीन पर है तो कोई ऊँची हाइट नहीं है तो अपने-अपने वेज़ निकालते गए लोग कि किस तरीके से ये करेंगे और फिर एक दिन उसका मुझे फ़ोन आया कि मतलब उसने मुझे मेल किया कि अरे! यहाँ पे स्कूल के बच्चे आए थे और वो बहुत ही शॉक्ड थे कि रैबिट कुछ ठहरा भी होता है? उसे तो पता ही नहीं था क्योंकि सुपरमार्केट में तो बिना चेहरे वाला रैबिट मिलता है। तो इस तरीके के मतलब और देखा जाए तो ये कितनी डरावनी बात भी है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं आप जैसे हम हँस रहे हैं बट मुझे लगा ये बहुत क्रीपी है एक्चुअली। हाँ, तो हाँ। तो अभी वही तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो मैं आने लगी तो ये समझ में आया यार
दिल्ली में भी एक सर्वे हुआ था जिसमें पूछा था कि दूध कहाँ से आता है, तो बच्चों ने बोला था पैकेट से आता है करके। और फिर यहाँ पर लोग कुछ-कुछ ग्रो करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको भी बहुत ही आश्चर्य होता है कि अरे! ओके ये ऐसा होता है क्या? ये इसका फूल ऐसा होता है, जबकि रोज़ हम प्याज़ खाते हैं, रोज़ हम कुछ चीज़ तो हम कंज़्यूम कर रहे हैं बेसिकली वो कितना बेसिक है ये, बहुत ही बेसिक चीज़। तो जो हम कंज़्यूम कर रहे हैं, उस बारे में हमको कुछ पता ही नहीं। तो पूरी दुनिया अरे! मेरे साथ ये हुआ हाल ही में आप प्याज़ की बात कर रहे हो, मेरे रसोई में तब से कुछ प्याज़ रखे हुए थे, हम इस्तेमाल नहीं कर पाए और हमने निकाला तो उनके ऊपर जैसे ना मतलब वो शूट बाहर आने लगे थे शूट। तो मतलब और एक्चुअली जो आप कह रहे हो मैंने कभी देखा नहीं था प्याज़ का प्लांट, ये पौधे फॉर्म में मैंने कभी नहीं देखा था प्याज़ को। और मैं गूगल कर रही हूँ कि अच्छा इसके कैसे होते हैं फूल और क्या तो भी। तो ये मैं एक्चुअली यही सब जो आप बातें कर रहे हो एक तो जो हम अभी पहले बात कर रहे थे अपने इको फेमिनिज़्म, एंटी कैपिटलिज़्म की कला पर हम जो अभी चर्चा कर रहे थे, किसी न किसी रूप में भी डॉक्टर किंग की ख़यालात में भी मौजूद है ये। हम सब इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं वही जोड़ना चाह रही थी हमारी बात को जो आज हो रहा है, 2021 में जो हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चल रहा है, उस संदर्भ में आपके काम की जो रेलेवेंस है, यानी प्रासंगिकता है, वो उभर कर आई है। और 2 सवाल उठते हैं। पहले क्या आप हमें संक्षिप्त में बता सकती हैं कि खुद एक किसान परिवार से होने के नाते कि हिंदुस्तान के किसानों का 91 में लिबरलाइज़ेशन यानी उदारीकरण के बाद जो सरकार के साथ इन मुद्दों पर तनाव रहा है, वो क्यों रहा है? ये आप थोड़ा हमें बता सकती हैं? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये सवाल बहुत ब्रॉड भी है। तो मैं आपके जो खुद के ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट के जो बारे में आपने लिखा है, वो वही मैं बोल देती हूँ एक बार। एक पैराग्राफ है जो मैंने पढ़ा फाइका की वेबसाइट पे जब 2015 में आपको मिला ये ग्रांट पब्लिक आर्ट ग्रांट जो मिला। While on one hand, the group's interventions over the past years to support farmers via different media like land art has yielded positive results in relation to soil water conservation work, tree plantation, reduced use of farm chemicals, the pace and scale of these positives is very slow and minute compared to the negatives that are happening all around with respect to agriculture. Farmer suicides, land grabbing by developers, ecologically and livelihood damaging technologies like genetically modified crops are being forced into the farming systems without bothering to involve farmers in the decision making process. And the farmers who are taking to streets to raise their voice against this injustice are being silenced at gunpoint. ये आपने 2015 का मतलब है ये टेक्स्ट और इसका पूरा मतलब बिल्कुल लगता है कि कल लिखा गया हो ये। हम लोगों ने एक लैंड आर्ट बनाया था, डियर प्राइम मिनिस्टर प्लीज ग्रो इन इंडिया। उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर का पोर्ट्रेट बनाया था और फिर नीचे में ऐसे लिखा था। उसका कारण ये था कि बाजू वाले गाँव में SEZ में बहुत सारी ज़मीनें गई थी। ये गाँव हमारे गाँव को लगकर ही है और उसमें पहले 100 किसान 5-6 साल पहले और जब ये SEZ में ज़मीनें गई थी तब बताया गया था कि यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ आएगी और तब मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा बूम में था और फैक्ट्रीज़ आएगी और फिर बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी और फिर लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा गाँव से और माइग्रेशन नहीं होगा लोगों को अगर यहीं पे जॉब मिलेगी तो। और दुनिया भर की बातें हुई थी और आज उस गाँव में सिर्फ 7 ही किसान हैं जिनके पास ज़मीन है, बाकी सब SEZ में गई, आज तक कोई फैक्ट्री नहीं है। और हमको भी पता भी है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ काम मिले, आधे से ज़्यादा काम तो मशीनें ही कर लेती है। टी फार्म में जैसे आप बोल रहे हो ना, जिसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ हर जगह पे आप देखोगे बहुत सारे अलग-अलग जगहों की अभी बहुत सारी फसलें धीरे-धीरे कम होते-होते कुछ फसलें ही बच गई हैं। तो बेसिकली इससे अगर देखा जाए तो ये सिर्फ़ यहाँ की या ये पॉलिसीज़ की बात नहीं है, बहुत सारी इसके ऊपर अलग-अलग चीज़ें डिपेंडेंट होती है। जैसे कि आस-पास का फ़ॉरेस्ट खत्म होना, अचानक से ऐसे लॉज़ बन जाना जहाँ पे पता चल रहा है कि ओके अभी यहाँ पे एक फ़ॉरेस्ट था, अभी यहाँ पे एक डैम खड़ा हो गया है। यहाँ का इसको इस जगह को पूरा डिस्प्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे हज़ारों टीक वुड का ही प्लांटेशन कर दिया है, जहाँ पे कोई जानवर या कोई पक्षी अपना पेट उस जंगल में नहीं भर पा रहा है क्योंकि फॉरेस्ट की पॉलिसीज़ ये है कि भाई तुम सब कुछ खत्म करो, वहाँ पे सिर्फ सागवान लगाओ क्योंकि वो एक कैश क्रॉप है, एक तरीके से। वहाँ की पूरी डाइवर्सिटी खत्म कर दो। फिर धीरे-धीरे जानवरों का भी प्लेसमेंट शुरू होता है, वो वहाँ से यहाँ पर आते हैं। फिर एनिमल वाइल्ड ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। फिर तुम जो फसलें लगाते हो वो अपने आप कम होते जाती है, उसका दायरा कम होते जाता है क्योंकि जंगली जानवर उसको नहीं छोड़ते हैं।
तो बेसिकली ये सारी चीज़ें एक साथ इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है और ये आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है और ये एक प्रॉब्लम है। अगर इसको पूरा होलिस्टिक वे में नहीं देखा जाए तो हम एंड अप टू दीज़ 3 फार्म लॉज़। और अभी अगर आपने देखा भी होगा तो ये सारा का सारा जो प्रोटेस्ट चालू है, उसमें मतलब तो एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है बोलने के लिए। कितने बार मैंने देखा है कि किसान तो दिल्ली में आके बैठे ही रहते हैं। अलग-अलग बातें बोलते ही रहते हैं, पर कभी भी उसको वो प्लेटफ़ॉर्म या उस तरीके का अटेंशन नहीं मिलता। ये जो अभी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटेस्ट है क्योंकि अलग-अलग तरीके के लोग आके जुड़े हुए हैं यहाँ पर अभी। और वो सारी बातें लेकर आ रहे हैं जो कि 3 लॉज़ के दायरे में तो आती ही नहीं है, तो कहीं बहुत सालों से चली आ रही चीज़ें हैं। यहाँ पे फैक्ट्रीज़ आएँगे, कॉर्पोरेट्स आएँगे, यहाँ पे उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट से एक अच्छा मार्केट खड़ा होगा। आज अगर यहाँ पे मतलब मैं यहाँ की बात बताती हूँ, जैसे कि अभी लॉज़ में ये लिखाया गया है कि अगर कुछ गलत होता है तो तुम एसडीएम के पास जा सकते हो, डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और वैसे भी लड़ाई तो बरोबरी वालों में होती है जहाँ पे मतलब हर तरीके से बरोबर हो, लड़ने के लिए सक्षम हो। आज मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य भी लगता है कभी-कभी क्योंकि ये एक ऐसा सीज़न है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हार्वेस्ट होने का समय भी है, बहुत सारी फसलें भी, चना है, गेहूँ है खेतों में। ऐसे टाइम पे ये सारी चीज़ें छोड़कर लोग वहाँ पर है। रोज़ मैं हर दिन पढ़ रही हूँ कि कहीं पर बहुत सारे ग्रुप्स है दोस्तों के जिससे पता चल रहा है कि अरे आज हम लोग जा रहे हैं, या इस रैली में लोग रहेंगे। ऐसे तो सब चीज़ें छोड़कर, खेत छोड़कर लोग है यहाँ पर। अभी सोइंग सीज़न बहुत पास में आने वाला है। तो क्यों है? बहुत सारे कंसर्न्स है जिसके बारे में लोग अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं। ओवरऑल ये इकोसिस्टम ये सब चीज़ें कहाँ 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 तक रहती है और कौन है मतलब अगर इन्वॉल्व अभी देखा जाए तो अडानी-अंबानी जैसे लोग ही इन्वॉल्व्ड है ना, जिनके खुद माइंस बड़े जंगल और माइंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, सब हिस्ट्री तो अपने को पता ही है ये सारी चीज़ों की। तो जब इसे सिर्फ़ ये 3 फार्म लॉज़ या कॉर्पोरेट से होने वाला लैंड ग्रैबिंग जो कि होगा ही, ये हम देख लेंगे आगे, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ों में ये सब चीज़ों से भी और भी अलग-अलग मतलब सिर्फ़ यही मुद्दे नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे जुड़े जी, जी। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तो हमने जब विस्तार में थोड़ी देर पहले भी बात की, जैसे ये जो हमारे सीजेआई बोबड़े हैं, जस्टिस बोबड़े, उन्होंने क्या बोला कि महिलाएँ क्यों बाहर खड़ी हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? उन्हें तो घर पे होना चाहिए, है ना? जब हम ये इस तरीके की भाषा भी हम लाते हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें डिस्कनेक्टेड नहीं हैं। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं कॉर्पोरेटाइज़ेशन की, जहाँ पे लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, खेती-बाड़ी पे कंट्रोल कॉर्पोरेशंस का लाया जा रहा है और स्त्रियों के शारीरिक ऑटोनॉमी पे सवाल उठ रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल एजेंसी के बारे में बातें हो रही हैं। तो हम ये सब चीज़ें ऑब्वियसली कनेक्टेड है ना। ये एक तरीका है पितृसत्ता का और पूँजी का लोगों के शरीरों पे, लोगों की ज़मीनों पे अपना अधिकार जमाने का, जो कि गैर कानूनी है, जो कि ऑप्रेसिव है। तो ये सब जो आप कह रही हैं, ये सब साथ मतलब ये अलग-अलग चीज़ों, अलग-अलग जगहों पे नहीं हो रहा है ना, ये सब साथ में मिलके एक मिश्रण है, जिससे लोग दबाए जा रहे हैं, जिन उन पे दमन हो रहा है। सही बात है, सही बात। और कहीं किसी ने मुझसे एक बात कही भी थी जो मुझे सच भी लगती है इन सारे कॉन्टेक्स्ट में कि तुम कहते हो कि ये रिलिजन का झगड़ा है, तुम कहते हो कि ये किसानों का झगड़ा है, तुम कहते हो ये जाति का झगड़ा है, लेकिन कहीं तो ये सारे झगड़े जाकर एक चीज़ पे आएँगे कि अगर छोटी से छोटी भी जाति रहेगी तो उसमें भी सबसे छोटा कौन है? या ऊँची से ऊँची जाति भी रहेगी तो उसमें सबसे छोटा कौन है? एक औरत ही। तो तो वही है कि कहीं तो भी खेती की और ये बाकी सारी चीज़ों की बात की जाए तो कंज़र्वेशन खेती में बुवाई करना, खेती में हार्वेस्ट करना और जो कुछ भी सामान आता है खेत से, वो घर में सुखाना, सन ड्राई करना, उसको वापस भर के रखना, उसको अलग-अलग चीज़ों में प्रोसेस करना, ये सब कौन करता है? ये सब औरत ही तो करती है। और और ये बोलना कि ऐसे समय पे कि औरतें, बूढ़े और बच्चे चले जाओ अलग-अलग तरीके के और भी डायलॉग समझ में आए कि अरे किसान के बच्चे होके अंग्रेज़ी में बात करते, ये है किसान के बच्चे। इस तरीके एक इमेज बना के रखना कि जहाँ पे तुम्हें एक औरत को घर में देखना है, एक किसान के बच्चे को ऐसा देखना है कि उसके कपड़े फटे हुए होंगे, वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। ये कहीं तो भी
मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि एक मानसिक बीमारी है, इस तरीके का थॉट प्रोसेस होना, और ऐसे लोग हमको रूल करते हैं। बिल्कुल, ये तो रूलिंग एलीट का, रूलिंग क्लास का ये तरीका है ना हमें अपने हद में रखने का, कि हम तभी लड़ेंगे आपके अधिकारों के लिए अगर आप परफ़ॉर्म करोगे गुड सिटिज़नशिप। अच्छा मुसलमान, अच्छा किसान, अच्छी महिला, अच्छाई वाली चीज़ें जो होती हैं बहुत खतरनाक होती है ना। आपने अभी सब बोला कि सितंबर 2020 में जो ये बनाए गए कृषि कानून हैं, किसान और खेत मज़दूर कह रहे हैं कि ये उनके अधिकार और हित के खिलाफ हैं, कि ये कॉर्पोरेशंस और अंबानी, अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को की आसानी के लिए बनाए गए हैं, जिससे उन्हें किसानों के संसाधन, उनके श्रम और उनकी आर्थिक परिस्थितियों पर एक किस्म का मुनाफ़ा बना सके, उस सब के शोषण से। हमारे देश में ऐसी जो सर्वहारा यानी प्रोलेटेरिएट प्रथाएँ हैं, चाहे वे आपने अमृता प्रीतम के बारे में तो बात की, लेकिन अगर हम सोचें पाश जैसे कवि हैं पंजाबी में, जिनके शब्दों को आज एक नई ज़िंदगी मिली है इन प्रोटेस्ट। लेकिन ये जो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आर्टिस्ट होने के नाते आपको क्या लगता है कि आर्ट का रोल हो सकता है इन राजनैतिक लड़ाइयों में? जो रूप रचना एस्थेटिक्स कहते हैं किसी आर्ट वर्क की, वह किस तरह तनकीद या क्रिटिक करता है राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर। तो आप अपने काम को इस प्रोटेस्ट आर्ट की वंशावली या जीनियोलॉजी में कैसे देखते हैं? आपको क्या-क्या लगता है कि आर्ट किस तरह एक राजनैतिक लड़ाई लड़ सकता है? विजुअल्स का अपना खुद का इम्पैक्ट तो होता ही है। जैसे मैंने आपको आई हैव अ ड्रीम के बारे में भी बताया। तो या अलग-अलग, मतलब मैंने आपको एक वो इटालियन अ, किसान की कहानी बताई, जो उस किसान के साथ हुआ था कि पूरा स्कूल आया था वो देखने के लिए। तो बेसिकली अगर आप और उसी तरीके से प्रोटेस्ट की भी भाषा दे दो, एक अगर आप झंडे लेकर एक जगह पे बैठ जाओगे, तो लोग ओवरलुक कर देंगे, क्योंकि ये इमेज कहीं तो भी उनके रोज के जीने में उन्होंने देखी है, कहीं तो भी वो है, वो छूट जाती है। वो बाँध के रखने के लिए तभी सक्षम है, जब सामने वाला भी उतने ही इंटेंसिटी के साथ उस चीज़ से जुड़ा हो। लेकिन जब जब जैसे ही वो किसी फॉर्म का रूप ले लेती है, जब के ऐसा विजुअल क्रिएट करती है जो लोगों को अपील हो, तो वहाँ लोग रुकते हैं, देखते हैं, फिर धीरे से समझने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, और सिर्फ़ एक विजुअल की बात नहीं है। तो वो विजुअल किस स्पेस में है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, वहाँ के लोग किस तरीके से, वो कितना ओपन है लोगों को अपना पन उसमें लगे, उस फ़ील्ड के लिए। तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि मतलब खुद को ऐसे किसी एक चीज़ में आइडेंटिफ़ाई करना अभी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर कि एज़ एन कलेक्टिव भी हम लोग देखें, तो कल रात को मैं खेत में हिरन भगा रही थी, आज सवेरे मैं खेत में थी, तो मैं मतलब मैं अलग-अलग रोल्स में थी, और अभी मैं आपसे आर्ट प्रैक्टिस के बारे में बात कर रही हूँ। तो सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं, तो ग्रुप में हर एक के साथ होता है। तो हर एक को हर एक रोल प्ले करना होता है, और वो इतना बदलता है हर वक़्त, लेकिन वो एक कलेक्टिव स्पेस ही होती है, या एक कलेक्टिव जो सबका मिलके कुछ कंसर्न होता है, उसकी तरफ पैशन होता है। तो वही चीज़ है जो कि मतलब वो सिर्फ़ एक विजुअल ही नहीं है। तो बेसिकली उसमें हर एक चीज़ का थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा होता है उसे पूरा कंप्लीट करने के लिए। सोशल मीडिया के ज़रिए जो ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट किस तरह किसान आंदोलन से जुड़ा रहा है, उसके बारे में ज़रा आपसे पूछना चाह रही थी। मैं देख रही थी कि आप सीड कैलेंडर और सीड फ्लैग्स मतलब आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप हमें बता सकती हैं कि जो पारतसिंघा में जागरूकता बढ़ाने और इन कानूनों के प्रति जो विरोध पुख्ता करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ़ 3 कानूनों की बात नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अब प्रोटेस्ट में भी अलग-अलग लोग अलग-अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत सालों से आया हुआ सप्रेशन, जिसके बारे में लोग माँग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अभी एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है बात करने के लिए। तो बेसिकली ऐसे ही बहुत सारे बातों में हमारी भी कुछ बातें हैं, जो हम लोग अलग-अलग तरीके से उसके ऊपर काम करते आए हैं, बोलते आए हैं। जहाँ पे अभी हर जगह पे गाँव में बीटी कपास उगता है, पूरे विदर्भ तक पे बीटी कपास उगता है। हम लोग पिछले 4-5 साल से देसी कपास उगा रहे हैं। यहाँ पे किसान कपास उगाते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली मंडियों में चले जाता है, जिसका प्रोसेसिंग वो खुद नहीं करते हैं। बाजू के गाँव में बुनकर है, लेकिन पूरा का पूरा धागा किसी फैक्ट्री से उनके पास बनकर आता है।
तो और उसी गाँव के किसान भी कपास ही उगाते हैं, बीटी कपास। तो बेसिक ये जो बहुत बड़े-बड़े डिस्कनेक्ट हुए हैं, तो हम लोग मतलब उसमें खेती करना और खेती में कपास उगाना, वो भी देसी कपास, खुद के बीज सेव करना, जबकि अभी यहाँ पे सिर्फ़ कंपनी के अलावा और कहीं का बीज नहीं मिलता है। वो भी एचटी, बीटी ये सब बीजें मिलते हैं। तो उसमें खुद का बीज बचा पाना, धागे बनाना चरखों पर, फिर उससे अलग-अलग हाथ काम करके उसकी राखियाँ बनाना या सीड बैंड्स बनाना, अलग-अलग आर्ट वर्क छोटे-छोटे बनाना। या अभी आपने सीड कैलेंडर्स देखे होंगे या आप जो फ्लैग बोल रहे हैं, वो फ्लैग सिर्फ़ एक प्लांटेबल फ्लैग ना होके उसके पूरे पोल्स और उसके बेस में हम राइट्स अलग-अलग राइट्स लिखे हुए हैं, मेंशन हुए हैं, क्योंकि अभी और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जब अभी कॉन्स्टिट्यूशन या अभी इनकी उड़ते हुए हम देख रहे हैं, तो उस समय में उसकी बात करना कि वो है क्या? मैं खुद में अपने आप में आपस में बात करना, या जो वो सीड कैलेंडर्स है, वो सिर्फ़ सीड कैलेंडर्स नहीं है, तो उसमें अलग-अलग दुनिया भर में जो औरतों ने खुद के हकों के लिए किए गए स्ट्रगल्स हैं, वो स्ट्रगल स्टोरीज़ है उसके अंदर। और ये जो सारी औरतें काम करती है भारत सिंह या आस-पास के गाँव की 100 औरतें हैं जो घर में ही काम करती हैं। उनको घर में हम धागे देते हैं बिछाकर, फिर वो सीड बैंड्स बनाती है। हर एक सीड बैंड के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है और वो कहानियाँ इसी से आती है कि हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कि औरतों को कहा गया कि तुम उठ जाओ चले और ये जो औरतें काम कर रही हैं, ये सब उम्र की औरतें हैं। उनके घर में लड़कियाँ हैं, बहुएँ हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, होनी बाकी है, कभी आगे लाइफ में जाएँगे। तो ये सारे चीज़ों के बारे में, हकों के बारे में, ये सब पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और और मतलब ये एक तरीके से हम एक मतलब ये एक तरीके से हम हमारा आपस में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, चीज़ों को समझना है। और फिर साथ में वो कैलेंडर्स में एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है हाथों से, उन पे स्ट्रगल डेट पे, ताकि तो वो बार-बार, बार-बार घुटता जाता है, क्योंकि हमको पता है कि ओके ये क्या बोल रहे हैं या हम क्या बोलना है। तो ऐसा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुझे लगता है हम सबके लिए ये प्रोसेस है। क्योंकि इसमें हमारा हम सबका ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना या डिस्कशन ये सब भी होता है। और जो आपने फ्लैग बोला, प्लांटेबल फ्लैग जो हम लोगों ने बनाया, तो अच्छा। उसमें हम लोगों ने एक बटवा बनाया है। उस बटवे में वो फ्लैग होता है और बटवा इसी से आता है कि औरतों के पास जेब नहीं होता है, उनके कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें जेब नहीं होता है। जबकि बहुत सारी औरतें ये काम करके खुद के घर को सपोर्ट कर रही है। बहुत सारी औरतें घर में पूरा खेती का काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जब वो फसल बेचने की बारी आती है या उससे आया हुआ हुँ, पैसा होता है, उसकी बारी आती है, तो वहाँ पे उसका कोई हक नहीं होता या ज़मीन पे नाम लिख बिल्कुल। तो उसका कोई हक जी, नहीं होता है। तो ये पत जी। तो बेसिकली आपका आइडिया बड़ा ही ज़बरदस्त था, श्वेता। तो बेसिकली वही कि वो बँटवा और फिर उस बँटवे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जिसके हुँ। बारे में मैं पढ़ रही थी, एक इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट थी जिसमें आपके मतलब काम के बारे में भी ज़िक्र था उसका, और उसमें एक वो बता रहे थे कि आपके गाँव में जो आपका कलेक्टिव है, लोग परफॉर्मेंसेज़ कर रहे हैं, क्रॉप कॉफ़िन परफॉर्मेंसेज़, उन्हें क्रॉप कॉफ़िन परफॉर्मेंसेज़ कहा जा रहा है। उसके बारे में ज़रा बताएँ? बेसिकली हम लोगों को जब ये फार्म लॉज़ के बारे में पता चला, जब वो पास हुए थे संडे को अचानक से और किसी का भी वोट ये भी कर, तो तब से हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में हमारी चर्चाएँ शुरू हुई है। हमारा पढ़ना भी शुरू है इन सब चीज़ों के बारे में और जब ये होगा तभी हम डायरेक्टली उस चीज़ के ऊपर बोल पाएँगे, लड़ पाएँगे। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो हमारी असहमति तो थी ही सबकी कलेक्टिवली इन फॉर्म पर। लेकिन जब पता चला कि बहुत सारे किसान पंजाब से वहाँ पर पहुँचे हैं और अलग-अलग बातें हो रही है और ये बोला जा रहा है कि अरे ये 3 फार्म लॉज़ के खिलाफ सिर्फ़ पंजाब के किसान हैं। तो हम लोगों को लगा नहीं, एक तो हमें जाना था, हमें प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना था, पर वो पॉसिबल नहीं है। आज कलेक्टिव स्ट्रेंथ बनी है, लेकिन सिर्फ़ ये बोलना कि ये सिर्फ़ उन्हीं की माँगे हैं, वो कहीं तो भी इसको बाँट देता है। तो मेरे बहुत सारे किसान दोस्त हैं अलग-अलग जगहों पे, उनसे बातचीत शुरू है या कुछ-कुछ कंट्रीज़ में ऑलरेडी जिस तरीके के लॉज़ हैं, वहाँ पे किसानों का किस तरीके से शोषण हुआ है और ऑफ़ कोर्स हमारे
आदत है ना कि बाहर से कुछ चीज़ों में इंस्पायर होकर फिर हमारे यहाँ पे भी वो लेकर चाहे वो बहुत ही घिनौना रूप ले चुकी है, उसे लोग ठुकरा चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं हमें तो वही करना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं तो भी हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे थे। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो उस चीज़ को इस तरीके से बोल पाए कि नहीं, ये सिर्फ़ पंजाब का प्रोटेस्ट है, ये हमारा भी प्रोटेस्ट है, ये हम सबका प्रोटेस्ट है। तो इस पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, एक एक विजुअल इमेज, क्योंकि हम लोगों को पता है लैंग्वेज क्या है, हमारी कलेक्टिवली अगर कोई चीज़ हम एक किसी इमेज के थ्रू, किसी परफॉर्मेंस के थ्रू या किसी और मतलब ऐसी चीज़ के थ्रू जो कि लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाए, इसके थ्रू हम अगर बोल पाए तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगे। तो हमारा का जो प्रोसेस था वो तो बहुत पहले शुरू हो चुका है। बहुत खुद की असंख्या थी, वो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये वक़्त था जहाँ पर हम लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी था, दिखना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि इससे सब लोगों की कलेक्टिव स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही है, साथ में ये समझ में आता है कि नहीं, ये सिर्फ़ पंजाब नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश भी है या भी है। इसीलिए वो क्रॉप कॉफिन्स हम लोगों ने ग्रो किए थे और वो इसलिए भी था कि जैसे-जैसे इस तरीके के लॉज़, इस तरीके के अमेंडमेंट पास होते जाएँगे, बिना किसानों को पूछे कि उनको अब खुद का भला करवाना है या नहीं करवाना है। वो होता है ना कि हम तो भला करने आए, तो फिर ऐसे ये बेकार अगर ये करोगे तो ये कॉफ़िन रोज़ के दिखेंगे, ये रोज़ के बनेंगे, रोज़ के ग्रो होंगे, रोज़ कोई ना कोई रखने का। तो हम लोगों का जो स्टैंडिंग क्रॉप था, जो कि ऑलरेडी उसमें से फसल आ ही रही थी, तो सबसे पहले तो हमने उसे पूरा खत्म किया, उस एरिया को। और वो सबसे पहला जो कॉफ़िन था वो क्रॉप का कॉफ़िन था, क्योंकि मतलब एक्चुअली इट वाज़ गोइंग टू वो बहुत मेहनत से उगाई गई फसल है, उसमें 6 महीने हम लोगों ने मेहनत की है और आज जब उसका देने का समय आया तब हम उसे खत्म कर दे रहे हैं। तो बेसिकली वो भी एक परफ़ॉर्मेंस का हिस्सा था, वो प्रोटेस्ट का हिस्सा था और उसके बाद हम लोगों ने उसी ज़मीन पे कॉफ़िन ड्रॉ करके उसके बॉर्डर्स पे कुछ सीड्स डाले और रोज़ हम लोग वहाँ पे बैठते थे 2 घंटा और आज भी मतलब हर कोई तो नहीं आ पाता है, लेकिन आज भी उसको प्रोटेक्ट करना, उसमें से सीड्स अभी उसमें फूल आ रहे हैं, पॉड्स बन रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना, फिर उसको पानी देना। तो ऐसे हम में से कोई ना कोई वो ज़िम्मेदारी लेता है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं, वो आती है खुद से। और जब हम लोग वहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं। और फिर हम यहाँ पे बैठ के क्या कर सकते हैं? हम जो कुछ भी कंज़्यूम कर रहे हैं, उसके बारे में हम कॉन्शियस हो सकते हैं क्या? हम समझ सकते हैं क्या वो चीज़ें कहाँ से आ रही है? और फिर सब चीज़ें सिर्फ़ ये प्रोटेस्ट या सिर्फ़ हम अपने रोज़ की लाइफ़ में क्या कर सकते हैं? तो हमारे खेतों में क्या-क्या उगता है? हम उसमें 2 फसल और बढ़ा सकते हैं क्या? हम खुद ये मार्केट, ये जो चीज़ों में हम फँसे हुए हैं, उन चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं क्या? हम खुद को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। और ये फार्म लॉज़ किस तरीके से अफ़ेक्ट करेगी और फिर उसके रिश्ते जोड़ना कि बाजू के गाँव में क्या हुआ 6 साल पहले, आज वहाँ के लोगों की क्या हालत, या फैक्ट्रीज़ आएगी तो क्या हो सकता है? या मोनोक्रॉपिंग जो हुई है जंगलों में और खेतों में, उसके वजह से उसका किसको नुकसान झेलना पड़ रहा है? और ये सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये सब इस इस वक़्त हम लोगों ने की। कुछ समय हम बातें करते थे, कुछ समय हम बातें सुनते थे। कुछ समय हम कॉफ़िन में लेटते थे, कभी हम गाने गाते थे। हुँ। ये जो आप बता रही हैं कि सॉलिडैरिटी जो एक राष्ट्रीय स्तर पे मैं खुद टिकरी और सिंगू गई थी अभी हाल ही में, तो वहाँ पे तो माहौल ही बहुत अलग है, आपने भी फुटेज देखी होगी, वीडियोज़ देखे होंगे। और बहुत ही रोमांचक भी था एक तरीके से, क्योंकि मैं देख रही थी जहाँ पे लंगर है, वहाँ पे जो पंजाबी अंकल हैं, वो पंजाबी इंग्लिश में बात कर रहे थे, तमिल अंकल से, जो तमिल इंग्लिश में बात कर रहे थे और तेलंगाना से लोग आए हुए थे, जो तेलुगु इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो ये सब कन्वर्सेशंस हो रही थी से, और वो अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं और अपने बीच में तो बात कर ही रहे हैं। लोग यूनियंस वगैरह के साथ भी आए हैं। तो वो एक नेशनल लेवल पे वो एक एकाग्रता और एकता हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। खासकर कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, इस सरकार, इस प्रशासन के खिलाफ एकजुट होके खड़े रहना। आप क्या बाकी आर्टिस्ट
से संपर्क में हैं, जो प्रोटेस्ट में शरीक हैं? मेरे कुछ दोस्त हैं जो नागपुर में हैं और आर्टिस्ट हैं, उनसे बहुत बार बातें हुई है। अच्छा। वो लोग आए भी हैं। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि कौन-कौन लोग वहाँ जा पाए हैं दिल्ली के पास। ऑफ़ कोर्स लोकल लेवल पे तो लोग एजिटेट और ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जैसे आप भी बता रही हैं, आपके गाँव में भी हो रहा है। लेकिन ये शर्म की बात है कि जब तक आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँचती, अब तो ऐसा लग रहा है अगर तब भी इतने पंजाब और हरियाणा के इतने समृद्ध किसान जो कि एक तरीके से काफ़ी पावरफुल हैं, वो ही अपनी बात नहीं सुनवा पा रहे हैं या जो सुनना नहीं चाहते हैं सरकार। तो वो बहुत इसीलिए मुश्किलात की घड़ी इसीलिए भी है। मैं ज ये थोड़ा मुझे पूछना है कि जैसे हम एक किस्म का क्रिटिक भी रहा है पॉलिटिकली एंगेज्ड आर्ट का, एक्टिविस्ट आर्ट जिसे हम कहते हैं कि ट्रेडिशन है एक्टिविस्ट आर्ट का, पुराना भी है और हम हमारे देश में शायद थोड़ा उसकी एक अलग हिस्ट्री है। वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री से मैं नहीं उसको कंपेयर करूँगी या ताल्लुक नहीं जोड़ूँगी। लेकिन मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो क्रिटिसिज़्म है ना कि कोई चीज़ अगर इतनी स्पष्ट, इतनी ऑब्वियस, इतनी ज़ाहिर हो जाए कि वो फिर आर्ट नहीं लगता है ना, वो एक किस्म का जैसे बस एक अ, वो फिर एक्टिविज़्म ही है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो फिर आर्ट कैसे है या हम ये कैसे हम डिफ़रेंस बनाएँ कि ये एक्टिविज़्म का एक मोड है और ये आर्ट है, ये कला है। इनके बीच का डिफ़रेंस के बारे में आप कैसे सोचते हैं अपनी प्रैक्टिस में? यही एक चीज़ है जो मुझे बहुत ही बार अभी अलग-अलग तरीके से समझ में आई है हर वक़्त। कहीं तो भी ये समझ में आने लगा था कि जिन चीज़ों के बारे में तड़प है कि हाँ, ये चीज़ों के बारे में बोलना है और बोलना किसको है, किससे बात कर ये बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि कहीं तो भी अगर आपने कभी आदिवासी गाने सुने होंगे या कुछ बहुत ही छोटी-छोटी बातें या बहुत ही बड़ी-बड़ी बातें भी बहुत ही सरल भाषा में ली जाती है, जो कि समझने में बहुत आसान होती है। और अगर वही भाषा को बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके या बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बोला जाए और उस वक़्त बोला जाए जब हाँ, जब वो स्पेस इमरजेंसी में ना, जब वो लोग सूली पे ना लटके हों, है ना? जब वो चीज़ को समझने, सोचने की ताकत, हिम्मत सब कुछ बचे, तब हम स्पेस में उस ऑडियंस को लेते हैं कि हाँ, इतना समय हमारे पास बचा है। और फिर वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी, वो कॉन्टेक्ट, वो ऑडियंस, वो बातें, और फिर वो आर्ट, वो उस तरीके से अपना रूप बदलते जाता है। और वो बहुत ही मतलब उसे अगर उस चीज़ को समझना हो, तो उसे दूर से रह के नहीं समझ उस कॉन्टेक्स्ट में आना पड़ेगा, उस स्पेस में आना पड़ेगा, उस समय में आना पड़ेगा, उस कम्युनिटी में आना पड़ेगा, वो जी के देखना पड़ेगा और तब वो कमेंट हम कर पाएँगे उन चीज़ों पे ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे मैंने बोला ना कि अभी तो ये बता पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर बार हम अलग-अलग रोल प्ले करते रहते हैं। या पहले ही तो बहुत डिवीज़न है ऑलरेडी। रोज़ हम सुन रहे हैं, रोज़ हम देख रहे हैं, तो फिर और क्यों डिवीज़न करना है? लाइफ़ और आर्ट में आप कह रहे हो। ज़िंदगी के जीने में और कला को बनाने में जो फ़ासला है। तो आप कह रहे हो कि वो क्यों है और किस तरीके से ब्रिज किया जाए? किस तरीके से ब्रिज किया जाए और सिर्फ़ वही चीज़ नहीं तो कला और कला में भी मतलब अलग-अलग तरीके की कलाओं में उसका डायरेक्ट होने में, इनडायरेक्ट होने में, एब्स्ट्रैक्ट होने में क्योंकि वो वो बहुत ही स्पेसिफ़िक समय पे बहुत ही स्पेसिफ़िक चीज़ों से आई हुई वो होती है। मतलब वो दूर से रह के हम एक अलग तरीके से देख सकते हैं, उसके बारे में दुनिया भर की बातें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं या उसको जीकर जब हम उसके बारे में बात कर पाएँगे तो मुझे लगता है बहुत ही जस्टिस भी होगा उस चीज़ को। हुँ। लेकिन ये भी तो है ना कि एक मतलब कि एक वो शक्ति शायद कला के एक कला में होती है ना, कि चाहे कोई किसी उस संदर्भ से वाकिफ़ ना भी हो, है ना? बहुत अगर बढ़िया आर्टवर्क है, वो कम्युनिकेट कर देगा उस कंडीशन को। उस व्य मतलब ये शायद मेरा सवाल इसी कुछ इसको शायद एक और तरीके से बोल रही हूँ कि मतलब एक्टिविज़्म और आर्ट का जो मतलब डिफ़रेंस है, वो कहीं न कहीं ये है ना कि एक स्लोगन और एक कविता में जो डिफ़रेंस होता है, आई मीन दोनों अहम हैं, दोनों की एक का महत्व है। लेकिन जैसे वो दोनों सेम नहीं है। मैं ये थोड़ा मेरा मानना है। हाँ, आपकी ये बात बरोबर है एकदम। ये सारी चीज़ें है ही,
लेकिन जो मैं आर्ट आप जो बोल रहे हो एक डायरेक्ट आर्ट और इनडायरेक्ट आर्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं या फिलोसॉफिकली बोली गई चीज़ या बहुत ही आर्टिस्टिकली बोली गई चीज़ या एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत ही ऑब्वियसली बोली। आई गेस मैं पूछ रही हूँ कि फ़र्क क्या है? लाइक आप क्योंकि काम करते हो उस इंटरसेक्शन पे, जहाँ आप दोनों आइडेंटिटीज़ में के हैं आपके। मैं वही बोल रही हूँ कि हम किस जगह पे काम कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस क्या है, हमको बोल क्या है, किसके साथ कम्युनिकेट करना है। प्रोसेस हम लोग जो फ़ॉलो करते हैं वो प्रोसेस ये होता है, किसी चीज़ के बारे में अगर कभी लग रहा है तो सारे लोग मिलके बैठते हैं। किस-किस की समझ उस चीज़ के बारे में क्या है, वो समझते हैं और एक-दूसरे की समझ एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाए और फिर उसके बाद सोचते हैं साथ में मिलके कि क्या करना है। बेसिकली अगर एक लैंड ऐड भी है, तो अरे ऐसे करना है, फिर इसमें ये बताना है, उसमें वो बताना है, ओके। फिर ये इमेज कैसी होनी चाहिए, फिर ये इमेज में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा किसी का एक अपर हैंड नहीं है कि नहीं ये होना चाहिए, कि क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ इसलिए मैं बोलूँगी कि नहीं, ये 2 चीज़ें नहीं भी रही तो ये पूरी समझती है। और किसान बोलेगा कि नहीं ये बीज नहीं चलेगा, इसकी जगह ये बीज डालो। तो ये ऐसे कोई अपर हैंड लेके नहीं काम करता है। तो सारे एक साथ सहमत हो और वो सहमति के लिए जितना समय लगेगा उतना समय लगेगा और फिर उस जो आएगा वो आएगा। तो वो हो सकता है कि वो बहुत ही डायरेक्ट वो हो सकता है वो बहुत ही कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो। लेकिन कैसा होता है कि जब अपन रोज के ज़िंदगी में जी रहे हैं और रोज के स्ट्रगल्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर उसमें से कोई चीज़ आ रही है, तो और वो कलेक्टिवली आ रही है, जहाँ पे अलग-अलग तबके के लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तब बहुत हो सकता है कि वो बहुत ही डायरेक्ट भी हो और इसीलिए कि उस चीज़ को समझने के लिए इसीलिए मैंने कहा था कि उस चीज़ को समझने के लिए कि वो कैसे आ रही है, क्यों आ रही है और किस तरीके से आ रही है, उस स्पेस को समझना, जीते आना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर सच में मायने नहीं रहता कि क्या आ रहा है से ज़्यादा वो किस प्रोसेस से आ रहा है, वो बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि जो आ रहा है वो तो आएगा जाएगा, हाँ, लेकिन वो प्रोसेस में जो सारे इकट्ठा होते हैं, जो टीम बिल्डिंग होती है, जो बातें होती है, जो शेयरिंग्स होती है, वो और जो प्रोसेस होता है, वो ओवरऑल काम के बाहर आने का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। ये भी वही जो आप ज़िंदगी और कला की जो हम बात कर रहे हैं, अब ये मतलब काफ़ी पुराना काफ़ी पुरानी चर्चा है और इनफैक्ट मुझे याद आया हमने आपने शुरू में तुषार जोग का ज़िक्र किया था आपके जब आपने अपनी प्रेरणा के बारे में बात की। अब सब जो सुन रहे हैं तुषार जोग बड़े ही मशहूर आर्टिस्ट और एजुकेटर थे, जो बहुत ही दुःख की बात है, आज हमारे बीच नहीं है। अम, वे भी स्कल्प्टर थे आपकी तरह और उन्होंने भारत में हिंदुस्तान में एक सीरियस पब्लिक इंटरवेंशन आर्ट की लेगेसी की स्थापना की है, ऐसा कह सकते हैं हम। यूनिसेल पब्लिक वर्क्स और राइडिंग रोसिनांटे उनके क्रिटिकली अक्लेम्ड काम रहे हैं और एक एक्टिविस्ट एनर्जी वो कला की दुनिया में लाए भारत में। मुझे याद है उन्होंने एक टॉक में कहा था कि एक समय था जब वो बाहर किसी रेज़िडेंसी में थे और यूरोप में शायद और उस वक़्त उन आर्ट और असल दुनिया के बीच का जो फ़ासला है, उसे देख के वो इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने अपना काम डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनकी जो ये स्ट्रगल थी, वो आई थिंक मतलब ये पुराना एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम सवाल है आर्ट हिस्ट्री में और एस्थेटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में जो चिंतन है, उस संदर्भ में हम जब एस्थेटिक्स और पॉलिटिक्स के रिश्ते के बारे में बात करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि जो असल दुनिया में मटीरियल भौतिक परिस्थिति है, उसको किस तरह आर्ट वर्क में तब्दील किया जाए। और अब जैक रॉसियर एक फिलोसोफर हैं, अ, उनका एक आइडिया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंसिबल, आप जानती होंगी। जो आपने अभी जो कुछ बातें करी मुझे उनके भी काम का मतलब काम याद आया है। उनका जो थीसिस है वो कुछ इस प्रकार का है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंसिबल का, कि जो राजनैतिक राजनैतिक गतिविधियों का ये तय करना कि श्रम या लेबर किस तरह भौतिक दुनिया में, असल दुनिया में, समय और जगह में बँटता है, ये भी तय करता है कि कला को बनाने और उस तक पहुँचने के लिए जो अनुभूति होती है,
सेंसिबिलिटी होती है उसका वितरण कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. उनका एक सेंटेंस है, the distribution of the sensible reveals who can have a share in what is common to the community based on what they do and based on the time and space when the activity is performed. जो आप कह रहे थे ना कि किसान जैसे अब खेत में हैं, तो वो कला कब बनाएँगे? अभी हम बात कर रहे थे कि वो सारा अपना खेती छोड़ के हार्वेस्ट फसल छोड़ के प्रोटेस्ट करने निकले हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन उनकी बॉडीज़ का जो स्पेस और टाइम में है, वो तय कर रहा है ना कि वो किस तरीके की मौजूदगी दे पाएँगे और किस तरीके से एक्सेस क्लेम कर पाएँगे कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज़ हैं कला के, है ना? और एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि हम ये भी सोच सकते हैं, इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट के बीज बो रहे हैं अभी फिलहाल में। तो बेसिकली जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इस समय में। जी, आपने बड़े अलंकारिक तरीके से इस्तेमाल किया है। बहुत एप्ट मेटाफर है। तो आगे क्या है श्वेता? अभी आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं आगे के लिए? कहते सोशल मीडिया में हम लोग एक्टिव है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती रहती है लेकिन ऐसा लगता है कि समय ही बहुत कम पड़ता है दिन का हर चीज़ के लिए क्योंकि फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है चीज़ों में कि आखिर में बस ऐसा लगता है कि अभी बिस्तर चाहिए सोने के लिए। हाँ, ये तो और सही है। निंदा और नींद। 2 ही चीज़ें मुमकिन है इस वक़्त भारत में। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक़्त दिया आर्ट लैब को। हमारे इतने तकनीकी डिफ़िकल्टीज़ रहीं, लेकिन आप डटी रहीं। बहुत धन्यवाद। मतलब अच्छा हुआ बात किया अपन ने क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करने के लिए अच्छा समय भी मिला। जी, बहुत शुक्रिया। Thank you for tuning into Artalab with Shweta Bhattar as we discussed the farmers' protests through her artistic and agricultural practice. If you enjoyed the podcast, please like and share the episode over social media. For more information and updates, you can follow us on Instagram at art.alab and on Twitter at @RTALAAP.